welcome to Talk Free. Mind, mind, mind. So many things are being said about mind. Did someone think why so many things are being said about mind? Because mind is a magnet, mind magnet. What you think, you become. If you think of blessings, you attract blessings. If you think of problems, you attract problems. As simple as that. Sanjay, it isn't that simple. Mind is the most powerful muscle a human can have. Yet people don't put in the effort to make this muscle stronger. Rather, they input it with such ill thoughts that all the power of mind vanishes. It is rightly said that which consumes your mind controls your life. As mind is a beautiful servant and a dangerous master as well. You must be aware of what thoughts are going inside your mind. People often say it is important to control your mind. What I feel is that one should focus on liberating the mind, set it free. It isn't a wild animal that someone needs to tame it. We are unaware of the fact that we think so many, literally so many negative thoughts in a day. It may not be deliberate, but we do. And this ruins us. If you want to change your life, you need to change your thinking. And let me put this clearly, this is completely different from toxic positivity. Do not get confused. Vent out your emotions, that is only humane. But be positive because Let me clear this too. PM is talking about positive thoughts. Make everything positive except COVID. right. And to tell the importance and explain about mind magnet, we have an expert here. We have with us Grandmaster Abdul Das, and he conducts subconscious mind power classes. In the subconscious mind power classes, he teaches the ESP techniques of remote viewing, remote influencing, organ regeneration, controlled on demand intuition, reprogramming of our inner consciousness, mental house cleaning, forgiveness, energy elimination of negative experiences, subjective communication, de addiction, healing, energy orientation, dynamic manifestation, habit control, self improvement, memory concentration, mind body fitness, phobia control, dream control, and analysis. Shifting from absent mindedness to present mindedness, time regression, and time progression. He also teaches telepathy, mind reading, aura control, astral projection, karmic correction, wealth energy, geopathic stress management, creativity, out of box thinking, problem solving, managing subconscious guidance, relationship improvement, mental fitness, personal transformation, anger control, chronic pain control, help in terminal diseases, improving self esteem, and experienced comprehension, to name a few. Apart from this, he is also a Vedic teacher, a sharpshooter, as well as a black belt in the Korean martial art of Taekwondo. He has also once been a national champion in inter-style martial arts. It is our pleasure to have you on Talk Free, sir. Welcome. I look forward to our discussions. Sir, we have heard so much about you that having you on Talk Free was one of our hit list. Sir, you conduct subconscious mind power classes. Can you explain what exactly subconscious is in an extremely simple way with examples? Okay. Let us think of a top loader washing machine. A washing machine where we put cloth from top, the water from top, like that kind of washing machine. Let us say there's a rotor underneath which is rotating in a particular direction. There's water on top and detergent, etc. Let's say you put a shirt from the top. So now the shirt is also rotating in the same direction as the rotor is rotating. Suppose you desire to stop the movement of the shirt and you put your hand to stop it, it doesn't stop. It still tends to go around in the same direction in which the rotor is moving. Let us say the setting is changed now. So the rotor stops and starts moving in the reverse direction, opposite direction.
very soon the water will also stop moving in its original direction, and then it will start picking up speed as it moves in that reverse direction. And the shirt too now will stop moving in the original direction and then start moving in the opposite direction, the reverse direction. So what happened to the shirt? It was not controlled by directly handling it. It got controlled because of the rotor which is moving underneath. Similarly, let us say you are angry or upset with somebody, and in that upset mood or angry mood, you enter another room where there is another person waiting for you, and that person has no issues with you, and you have no issues with that person. Yet your subconscious is fired up with a lot of anger and frustration. So as you begin to speak to this person who has no issues with you and you have no issues with that person, yet the choice of words that you make while speaking to this person, your tone of voice, your body language, all that will be now influenced with the anger that is seething within you. So that is the subconscious mind. It controls your outer behavior, outer activities, the external world, appearances that you put up in this world. All of that is controlled by the subconscious. So once you gain control on your subconscious, you're able to gain control on your outer activities of this world. So when you, like a student, let's say final exam is going on. Today there was geography paper, and the student somehow did not end up doing good in that geography paper. Tomorrow is English paper. After coming home, the student is simply thinking, oh, today my exam was not good. I wish I could have done better, and is feeling sad. As a result, is not preparing for the English exam that effectively as he could have prepared otherwise. So our subconscious nature affects our physical world's activities, our efficiency, and everything. So by gaining control on the subconscious, we are able to gain control on our external world's activity, external presentation, and our thought process, our belief system, everything. So that is one quick example of subconscious mind. Okay, this is quite an interesting concept, the subconscious world. The subconscious mind is something which we don't explore quite often. So, sir, very well explained by the way of washing machine. And yes, we all have gone through. If one paper doesn't go well, we keep on thinking about it rather than preparing for the next. We have been doing this all our lives. Sir, how can we explore our subconscious world? This world definitely has vast opportunities for humans, some do's and don'ts. Subconscious is not some another place. It is our own mind, same mind. इसको अगर हिंदी में समझेंगे तो समझना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हिंदी का भाषा ही ऐसा है, सचेतन मन एवं अवचेतन मन. So the conscious mind is called सचेतन, अर्थात चेतना के साथ मन के जिस स्तर पे हम पहुंचकर अपने काम कर सकते हैं वो हो गया सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड. एंड सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन, अर्थात मन का वो वाला गहरा स्तर जो डीप रूटेड जो जगह का है मन का, वहां पर जिधर हम चेतना के साथ नहीं पहुंच सकते. दैट मीन्स दैट रीजन ऑफ द माइंड where we are unable to reach with conscious control and conscious awareness, that section of the mind, that region of the mind is called subconscious mind और अवचेतन मन, जैसे हिंदी में कहते हैं. जैसे मेरीन लेवल होता है और उसके नीचे गहराई में सब मेरीन लेवल होता है. जैसा कि कॉन्शियस माइंड है ऊपर के स्तर पे, बाहरी स्तर पे, उसके नीचे गहराई पे हो गया सब कॉन्शियस. और माइंड एक ही है, सेम माइंड है, उसी माइंड का गहरा स्तर. इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं. मान लीजिए आप तालाब में उतरे हैं नहाने के लिए, और तालाब में मिट्टी है, जो कि होता है नॉर्मली, नीचे की तरफ मिट्टी होती है. बच्चे कूद रहे हैं नहाने के लिए, डाइविंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कोई कपड़ा धो रहा है. तो तालाब का पानी जो है मटमैला सा हो गया है, थोड़ा, जिसको बंगाली में बोलते हैं घुलाटे, थोड़ा मटमैला हो गया है. तो अभी जब गले तक पानी है, आप नीचे सिर झुका के देखते हो, आपका पेट तक शायद आपको दिखाई ना दे, क्योंकि वहां पे पानी मैला हो चुका है. पर लेट अस से कि पानी में सारे एक्टिविटीज रुक गए हैं, कोई कूद नहीं रहा है, कोई तैर नहीं रहा है, कोई कपड़े नहीं धो रहा है.
बस पानी को हम शांत होने को अलाउ कर देते हैं। धीरे धीरे पानी सेटल होना शुरू होता है, पानी के अंदर जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स है वो सेटल होना शुरू होते हैं। तो पहले तो हम सिर्फ अपने पेट तक मुश्किल से देख पा रहे थे, पर अभी घुटना भी दिखने लग जाएगा। तो वो जो पहले हमें नहीं दिख रहा था, अब पानी के शांत होने पर वो हमको दृष्टिगोचर हो गया, हम उसको देख पा रहे हैं। थोड़ा और समय तक हम रुके रहे तो पैर की उंगलियां तक दिख जाएंगी, नीचे जो कंकड़ हैं वो तक दिख जाएंगे। तो हमारा मन ठीक वैसा ही है, हर समय हम एजिटेटेड रहते हैं, भागा दौड़ी करते रहते हैं मन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मन को कंटिन्यूसली इधर उधर कई जगहों पे हम यूटिलाइज करते रहते हैं। तो मन में बहुत उथल पुथल हो रहा है, मैला मैला सा हो गया है। तो अपने ही मन की गहराई को हम ना देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में कहां पर क्या खामियां हैं, क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, डर बैठा हुआ है, नेगेटिव थॉट्स बैठे हुए हैं, या कुछ पॉजिटिव एस्पिरेशंस है, होप्स हैं, या टैलेंट्स है हमारे अंदर सबकॉन्शियस लेवल पे। हमको पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि हमको नहीं दिख रहा है। परंतु जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान अवस्था में प्रवेश करते हैं, हमारा मन शांत होने लगता है। जैसे जैसे मन शांत होता है, मन की जो गहरे स्तर हैं वो हमको प्रतीत होने लगता है, हम उसको फील कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, यहाँ तक कि देख पाते हैं। तो वो वाला मन का स्तर जो पहले सबकॉन्शियस कहलाता था या अवचेतन मन कहलाता था, अभी वो कॉन्शियस हो गया, हम उसके प्रति कॉन्शियस हो गए, हमको पता चल गया कि वहां पे ये है वो है। सो पहले जो सबकॉन्शियस था अब वो कॉन्शियस माइंड हो गया, परंतु अभी भी बहुत सारा सबकॉन्शियस है नीचे। और मेडिटेशन करोगे, मन को और शांत करोगे, तो वो सबकॉन्शियस भी कॉन्शियस हो जाएगा। और मेडिटेशन करते वक्त क्या होता है, सारे थॉट उसी समय आते हैं, जो आप नहीं भी सोचना चाहते हो वो सारे थॉट्स आ जाते हैं, तो मन शांत नहीं होता है और ज्यादा सोचने लग जाता है। इसको कैसे ठीक करें? पर वो इसके लिए हो रहा है क्योंकि मेडिटेशन की पद्धति सही वाली नहीं है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस है वो पद्धति से नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अपनी इच्छा से कर रहे हैं। इच्छा से, जैसे आप किसी नए शहर में जाते हो, किसी नए देश के किसी नए शहर में जाते हो, मतलब देश तो पुराना है, शहर भी पुराना है, आप पहली बार वहां पे गए, उस देश के नियम अलग है, कानून अलग है, सड़कों में चलने का तरीका अलग है। भारतवर्ष में हम लेफ्ट साइड चलते हैं, परंतु किसी किसी देश में दाहिनी तरफ चलना पड़ता है। यहाँ पे सिग्नल का ये मीनिंग है, वहां पे सिग्नल का वो और मीनिंग है। यहाँ का कल्चर है कि वहां का कल्चर अलग है। तो हम अपने यहाँ के थॉट प्रोसेस को लेके जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे हमको कंफ्यूजन हो जाता है, तकलीफ हो जाती है। तो अपने तरीके से करने से नहीं होगा, हमको उस देश में वहां का सिस्टम सीखना पड़ेगा। तो उस प्रकार से सचेतन मन के जो लॉज हैं, जो नियम है, कानून है, जिस प्रकार से सचेतन मन में हम काम करते हैं, जिस तरीके से उसको व्यवहार में लाते हैं, वही चीज लेके हम सबकॉन्शियस में घुस गए और वहां भी वही करने की कोशिश की जो सचेतन में करते हैं, तो फिर गड़बड़ होने का आस भी है। तो वहां पे हमको सीखना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड में कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे नेगोशिएट किया जाता है, कैसे रास्ता ढूंढा जाता है और कैसे रास्तों पे चला जाता है। तो वो सीखना पड़ता है एक क्वालिफाइड टीचर से जब हम सीखेंगे। और सीखते समय ये नहीं कि कुछ भी सीख लिया। बेस्ट होता है, वैसे तरीके तो कई हैं, पर बेस्ट होता है जब साइंस का बेसिस हम ले लें, साइंटिफिक रिसर्च को जब हम यूटिलाइज करते हैं, तो फिर उसके बेसिस पे जो डेवलपमेंट हुआ है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको यूटिलाइज करके जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके, बैक ट्रैकिंग करके, फाइंड आउट करके देखते हैं कि किस प्रकार से सबसे एफिशिएंट यूसेज हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड का, कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके पावर को फुल्ली हम बेनिफिट में ला सकते हैं। वैसे करके जब करेंगे, देखेंगे बहुत ही आसान है, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है, ऐसे बैठे बैठे सब काम हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्गन रीजनरेशन हम वो कर लेते हैं, हम पास्ट को करेक्शन कर पाते हैं। लोग कहते हैं ना कि जो हो गया सो हो गया, आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको आता नहीं था कैसे करते हैं। तो हमको एनर्जी लेवल पे हम टाइम में ट्रेवल करके पीछे जा सकते हैं, हम टाइम डिस्टॉर्शन कर सकते हैं, टाइम को एक्सपैंड कर सकते हैं, टाइम को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम एनर्जी वर्म होल पोर्टल्स बना सकते हैं। अर्थात यहाँ बैठे बैठे आप दूर के किसी भी चीज को स्पर्श कर सकते हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी काम से दूसरे किसी शहर में गए हुए हैं, वहां पे आपका कोई काम है, आपके घर में आपकी माँ है या दादी माँ है, नानी माँ है, कोई बड़ी कोई बुजुर्ग महिला है जो आपको मिस कर रही हैं, बहुत मिस कर रही हैं आपको। वो चाहती हैं कि आप भी काश उनके पास होते,
तो वो आपको याद करके दुखी हो रही है, खाना नहीं खा रही या नींद नहीं आ रही उनको। आप तो दूसरे शहर में हो या दूसरे कॉन्टिनेंट में हो, दूसरे किसी देश में हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, माइंड पावर से एक एनर्जी पोर्टल बना सकते हो। उस पोर्टल से अपने हाथ को डाल सकते हो और उस पोर्टल का आउटपुट उस जगह पर अपने घर में अपनी नानी के पास बना सकते हो। वहां से आपका हाथ निकल के आएगा और नानी माँ के सिर पे बड़े प्रेम से हाथ फेर देगा या उनको सहला देगा। और आप यहाँ से मेंटल एनर्जी से टेलीपैथी के द्वारा उनको कम्युनिकेट करेंगे कि नानी मैं यहाँ पे हूँ, चिंता मत करो, आप ठीक रहो, ऐसा करो, चलो चलो खाना खा लो, खाना खाने से ऐसे नहीं करते, मना नहीं करते, चलिए खा लीजिए। इन केस कोई आपको लाइव वीडियो दिखा रहा है वहां से, सपोज आपके घर में सीसीटीवी कैमरा है या किसी ने स्काइप वीडियो या किसी और लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेथड से आपको कोई दिखा रहा है वहां से आपको, तो आपको लाइव दिखाई देगा जब आप इस एनर्जी पोर्टल से हाथ डाल के अपनी नानी को सहला रहे हो बड़े प्रेम के साथ, जैसे फिजिकली एक्चुअल में आप करते थे। या कोई बीमार बच्चा है उसको आप सांत्वना दे रहे हो कि मैं हूं यहाँ पर, चिंता मत करो, चलो चलो दवाई ले लो, चलो खाना खा लो। तो आपको लाइव वीडियो में दिखाई देगा। जैसे ही आपने यहाँ पे कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया, उनकी आंखें चमक उठी, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गया, उनको अनुभव हो गया फिजिकल लेवल पे कि हाँ वो जो मेरा चहेता जो बेटा है बेटी है मेरे पास है, अभी मैं अकेली नहीं हूँ। ऐसे उनको लाइव एक्सपीरियंस होगा। ये डेमोन्स्ट्रेबल चीज है, ये वेरीफाइबल चीज है, इसको आप लाइव खुद से एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। वीडियो में आपको एविडेंस मिल जाएगा कि हाँ उस व्यक्ति ने अनुभव किया है कि आप उनके करीब बैठे हैं। इस प्रकार से हम अपनों के करीब हो सकते हैं जब हम फिजिकली डिस्टेंस में हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए। हम पास्ट को करेक्शन कर सकते हैं, हम फ्यूचर को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हो सकते हैं। जैसे आप सड़क पर चल के जा रहे हो, सामने अगर एक खड्डा है, आप जाके गिर जाते हो तो लोग क्या बोलेंगे, आंखें हैं कि बटन, दिख नहीं रहा था, सामने खड्डा है, देख के चले होते। तो उसी प्रकार से जीवन में जब हम आगे चल रहे हैं, हमारे पास अंदरूनी आंखें हैं ना, तीसरी आंख है ना हमारे पास, तो क्यों नहीं उसको यूटिलाइज करके आगे देख लें कि ये रिलेशनशिप आगे जाके क्या होने वाला है, इसका ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आगे जाके क्या होने वाला है। फलाना व्यक्ति के साथ जो हम बिजनेस पार्टनरशिप एंटर कर रहे हैं, आगे जाके कहीं वो हमें धोखा तो नहीं देगा, आगे जाके इस कोर्ट केस का अंत क्या हो सकता है, जिस दिशा में हम जा रहे हैं इस दिशा में चलते रहे, आगे जाके कोर्ट केस में क्या होगा। ये जो लोन मांग रहा है मुझसे ये व्यक्ति, मेरा प्रिय बंधु है, इसको मैं अगर पैसे दे दूं तो पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कितना भागना पड़ेगा इस पैसे के लिए। ऐसे करके हम फ्यूचर को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं टू ए सर्टेन एक्सटेंट, टू ए सेटिस्फैक्टरी एक्सटेंट, और उस हिसाब से हम प्रेजेंट टाइम पे डिसीजंस ले सकते हैं। कैरियर सिलेक्शन जैसे स्टूडेंट्स को होता है, किस लाइन में जाऊं, क्या कहते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जाऊं या होटल मैनेजमेंट में जाऊं या एस्ट्रोफिजिक्स में, किधर जाऊं, क्या करना चाहिए मुझे, वेयर इज माई सक्सेस। नौकरी ढूंढने के लिए 200 जगहों पर एप्लीकेशन जमा करते हैं लोग, क्यों इतना मतलब टाइम खर्च कर रहे हो, क्यों इतने इंटरव्यूज में जा रहे हो, पहले से चेक कर लो कहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर है, डायरेक्टली वहां पे जाओ, अपने सारे एनर्जीज को समेट लो और फोकस करके एक जगह पे डालो। जैसे सूरज की किरणें हर जगह गिरती हैं, अच्छी बात है, परंतु लेंस से उसको फोकस करके एक पॉइंट पे लेके आते हैं तो उसमें इतना हीट क्रिएट होता है कि वहां पे आग तक लग सकती है। जैसे कि आपकी जो मन की शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, आपका जो एनर्जी है, इंटेलिजेंस है, उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके बिखेरे क्यों जा रहे हो। नौकरी चाहिए, फाइंड आउट कहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहां पे डालो और इतना एफिशिएंट परफॉर्मेंस वहां पे करो, यानी जो कुछ करना है, और फिर उसके बाद नौकरी को ले लो। रिलेशनशिप के लिए भी ऐसा है, हर जगह पे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हम फिर करेंगे, ये सब मेडिटेशन करके करना है, वो भी गाइडेड मेडिटेशन। दैट मीन्स खुद से हमको पहले नॉलेज प्राप्त कर लेना है कि क्या एफिशिएंट मेथड है जिससे कि हम सबकॉन्शियस में जाकर यानी मेडिटेशन करते समय बहक ना जाए, हम विभ्रांत ना हो जाए, इधर उधर मतलब भटक ना जाए, हम फोकस रहें। जैसे धनुष से तीर निकलता है और तीर जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता तो सीधा चलता रहता है, वैसे करके मेडिटेशन करना है। बस करेंगे, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल नींद नहीं आएगी, एकदम फोकस में रहेंगे और फिर अचीविंग करेंगे बड़े बड़े चीजों का। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ बॉडी प्रोजेक्शन, बॉडी से बाहर निकल गए और ट्रैवल कर रहे हैं अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। आपने बुक्स में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, कहानियां सुनी है, भारतवर्ष में जो भी पैदा हुआ है सब व्यक्ति को पता है कि रामचंद्र भगवान ने धनुष तोड़ा था सीता देवी के स्वयंवर के समय। जाके विटनेस करके आओ ना,
पता चल जाएगा ये ट्रुथ है या फॉल्सहुड है। क्या ऐसे बात कहानी करे हम सर, रामायण युग में जाके देख सकते हैं? यस, वो तो कर ही सकते हैं, पर एविडेंस क्या है कि सच में आपने देखा है और ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, आपके मन का बनाया हुआ मनगढ़ंत चीज नहीं है। इसका एविडेंस क्या, प्रूफ क्या? प्रूफ ये है, मान लो आपने ये ट्रेनिंग किया हुआ है, आपको पता है ये सब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपने सब कुछ सीख लिया। ऐसे 50 लोगों को पकड़ लो, 50 पीपल लिविंग अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कहीं भी वो 50 लोग रहते हैं। आपस में एक ग्रुप बना लो, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप बना लो आपस में डिस्कस करने के लिए, ईमेल्स से एक्सचेंज करो। फिर आपस में डिसाइड करो कि चलो अगले 1 महीने के अंदर हम सब के सब अपने हिसाब से, अपने घर से, बिना किसी को बताए, बिना किसी का हेल्प लिए, अपनी अपनी इच्छा पे, अपने टाइम पे हम टाइम ट्रेवल करके जाएंगे उस समय पे जब ये पूरा इंसिडेंस हुआ था। लोग सोचते हैं त्रेता युग की बात है, बस अभी कलयुग चल रहा है, इससे पहले द्वापर त्रेता। नहीं, ये गलत धारणा है। इस त्रेता युग में रामचंद्र नहीं आए थे। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है कि रामचंद्र इस त्रेता युग में आए थे। चतुर्युग होता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता। द्वा मतलब 2, त्रे यानी 3। तो पहले द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है, फिर कलयुग आता है। इस प्रकार से 4 युग चलते हैं। ये वाला एक स्पेशल टाइम है जहाँ पे चेस की तरह द्वा और त्रे उसको एक्सचेंज कर दिया गया है। इस चतुर्युग में त्रेता पहले आया, फिर कलयुग आया, बट प्रीवियस वाले में द्वापर त्रेता करके था। तो ये वाला चतुर्युग नहीं, इससे पिछले वाला चतुर्युग भी नहीं, उससे पिछले वाला चतुर्युग भी नहीं, उससे पिछले वाला भी नहीं, परंतु उससे पिछला वाला 24th वाला, ये 28 चल रहा है। तो 24th चतुर्युग का जो त्रेता युग है, उस समय रामचंद्र आए थे। तो कितना ईयर्स पुराना हो गया अगर हम ह्यूमन ईयर्स में काउंट करेंगे? ये करोड्स ऑफ ईयर्स हो जाता है, 70 करोड़ से ज्यादा पुराना टाइम हो जाता है अगर आप कैलकुलेट करेंगे। कलयुग कितने पीरियड का होता है? 432,000 ईयर्स का कुछ होता है कलयुग। इसका 10 टाइम्स होता है प्रीवियस युग, उसका 10 टाइम्स होता है प्रीवियस युग, उसका भी 10 टाइम्स होता है प्रीवियस युग। सो इतना बड़ा पीरियड आप जंप करके, टाइम जंप करके जाने वाले हो। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आप ध्यान अवस्था में गए और जो हमारा टाइम प्रोजेक्शन वाला टेक्निक है उसको यूटिलाइज किया, पहुंच गए। सो करना क्या है, 50 लोग आपस में बैठ के, या 100 लोग या 150 लोग या 400 450 लोग, जितना मर्जी कर लो, ओपन इन्विटेशन है, करो। कौन रोक रहा है करने से? आपका घर, आपका माइंड, आपकी इच्छा, जब करना है, जॉब करना है, करो। कौन रोकने वाला है? कोई टैक्स लगाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कोविड रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप बस चले जाओ अपनी इच्छा से, जब चाहो तब चले जाओ एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके। तो जाके फाइंड आउट करो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन रिलेशनशिप विद रामचंद्र, सीता देवी कौन से डायरेक्शन में है? इस साइड में है, इस साइड में है, इधर है या इधर है? एग्जैक्ट डायरेक्शन कौन सा है? 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, इस प्रकार से कौन से डायरेक्शन में है? सेम लेवल पे है कि हायर बालकनी टाइप लेवल पे है, या लोअर, ये खुद बालकनी में है तो लोअर लेवल पे? कौन से लेवल पे, यानी वाई एक्सिस में कहां पर है, एक्स एक्सिस में कहां पे, जेड एक्सिस में? इन रिलेशनशिप टू रामचंद्र, सीता देवी कहां पर है? उन्होंने क्या क्या ड्रेस पहना हुआ है, किस कलर का प्राइमरी ड्रेस है उनका? रेडिश है, येलोइश है, मेरूनिश है, ग्रीनिश है, ब्लूइश? क्या है प्राइम प्रिंसिपल कलर, क्या है उनके ड्रेस का? अगर आप प्रिसाइज और भी जानना चाहते हो तो कौन कौन से गहने पहने हुए हैं, उन गहनों का डिजाइन क्या है, यहां तक भी चले जाओ। उन्होंने चूड़ियां पहनी है, किस किस कलर की, किस डिस्टेंस पे और कितने मात्रा में वो पहनी है, इतने डिटेल्स में चले जाओ। एनीवे, मोटा मोटी जनरली देखना है तो ओवरऑल इस कलर का ड्रेस पहना हुआ है। लेट अस से आपका उतना एक्यूरेसी नहीं है, इतना तो कर लो, इतना तो कोई भी कर सकता है। उसके बाद धनुष का डिजाइन क्या है? अलग अलग प्रकार के डिजाइन होते हैं बोस का, जो धनुष का। ये वाला धनुष जो रामचंद्र ने तोड़ा था, उसका स्पेसिफिक डिजाइन क्या है? स्टडी कर लो, ठीक है? अभी क्या करना है बताता हूँ, स्टडी कर लो। फिर जब सीता देवी रामचंद्र को अप्रोच कर रही हैं, वो कौन सा रूट फॉलो करके आती हैं? क्या वो इधर से आती हैं, इधर से आती हैं, स्ट्रेट आती हैं, नीचे जाके आती हैं, ऊपर जाके, कैसे आती हैं? उनका रूट क्या है जिस रूट को उन्होंने फॉलो किया? आते समय एक चीज तो मैं अभी पहले से बता दूं, एक खंबा आता है बीच में, खंबे के इस साइड से आती हैं कि उस साइड से आती हैं? एवरीवन शुड बी करेक्ट। अगर 150 लोग कर रहे हैं, ऑल 150 का करेक्ट होना चाहिए। खैर, एनीवे, तो किस डायरेक्शन से आ रही है, क्या पहना हुआ है, और उनके पास जो गार्लैंड है उसका डिजाइन क्या है, उसमें कलर्स क्या क्या है?
अगर फ्लावर को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो गुड, बट एटलीस्ट कौन कौन से कलर्स है इतना तो बता दो, व्हाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, क्या है कुछ तो बताओ। तो इस प्रकार से ओवरऑल डिजाइन तो बता ही सकते हो। लेट अस से आपने कुछ तो फाइंड आउट किया, और ये फाइंड आउट करने के लिए किसी ने आपको गाइड नहीं किया था, यानी आप किसी के गाइडेंस पे आप ये नहीं कर रहे हो, आप बस अपना बैठे बैठे आंख बंद करके चले गए और फाइंड आउट करके वापस आ गए। जो कुछ आपने फाइंड आउट किया उस चीज को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक फाइल में टाइप करके लिख लो, फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट करो और किसी डेसिग्नेटेड ईमेल में उसको भेज दो, जो पहले से आपस में आप लोगों ने डिसाइड किया, विच मीन्स आपने भेज दिया है उस ईमेल को, अभी उसको एडिट नहीं कर सकते, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और मतलब जा चुका है, जिसके पास आ चुका है उसने लेकर, उसको आपने बता दिया कि मैंने ईमेल भेज दिया, उसने लेके अपने हार्ड डिस्क में अलग से सेव कर लिया, यानी अगर अभी आप उसमें चेंजेस ला रहे हो तो वो अपडेट नहीं हो रहा है, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर लो, एक बार जो ओरिजिनल है सो है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। ऐसे करके 50 लोगों ने या 150 लोगों ने वर्ल्ड के अलग अलग जगहों में बैठ के अलग अलग समय पे अपने अपने हिसाब से किसी को बिना बताए, दैट मीन्स ग्रुप हेलुसिनेशन का चांस नहीं है। जब लोग कहते हैं हेलुसिनेशन है ये भाई, या ग्रुप हेलुसिनेशन है, सबको एक ही हेलुसिनेशन हुआ है, यहाँ ग्रुप कहां से हो रहा है, सब तो इंडिविजुअली कर रहे हैं, दूसरे को बिना बता के कर रहे हैं, किसी के गाइडेंस पे नहीं कर रहे, खुद से कर रहे हैं, सब ने अपना अपना ऐसे करके फाइल बना बना के भेज दिया उस थर्ड पार्टी को। अभी ऑन ए स्पेसिफिक डेट, एक महीने के बाद कोई पर्टिकुलर तारीख को हम इस पार्क में मिलेंगे या इस जगह पे मिलेंगे, सब लोग मिले, वहां पे फिजिकली मिले, सबका फाइल स्टोर किया हुआ अलग से, किसी ने एक दूसरे का फाइल चेक नहीं किया अभी तक। अर्थात अगर किसी ने कहा सीता देवी तो मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी, दूसरा शर्मा जाएगा, अरे मैंने तो येलो देखा था, मैं भी मैरून बोल दूं इज्जत बच जाएगी, नहीं तो मेरा तो सबके सामने इज्जत खराब हो जाएगा। ये नहीं कर सकता क्योंकि फाइल तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, प्लस जिसके पास पहुंचा है उसको पासवर्ड नहीं पता, वो खोल नहीं पाया फाइल को, उसने बस सेव करके रखा हुआ था, यानी लास्ट मोमेंट में अपनी बात से कोई पलट नहीं सकता, हो गया सो हो गया। अभी सबके प्रेजेंस में सिंगल स्क्रीन पे उस फाइल को लेके आओ, सबके प्रेजेंस में वो व्यक्ति जिसका फाइल है वो अपना पासवर्ड बताएगा, थर्ड पर्सन उसको टाइप करेगा, फाइल ओपन होगा और सबके सब एक साथ फाइल को स्टडी करेंगे। फाइल में जो इंफॉर्मेशन है सो है, यानी लास्ट मोमेंट में चेंजेस का कोई चांस ही नहीं था। ऐसे करके व्हाट इफ सारे के सारे 50 फाइल जो ओपन होते हैं सब में एक ही इंफॉर्मेशन है, अलग इंफॉर्मेशन नहीं है। व्हाट मोर प्रूफ इज रिक्वायर्ड कि आपने एक्चुअल में टाइम ट्रेवल किया था, आपने एक्चुअल में ट्रुथ को दर्शन किया, तत्व दर्शन किया, डायरेक्टली ट्रुथ को आपने परसीव किया है। इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए? 50 से सेटिस्फाइड नहीं हो, चलो 150 कर लो, कब जाके सेटिस्फाई हो गए? 500 पे कर लो। सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है 2000 कर लो, अब तो सेटिस्फाइड हो जाओ अगर सब के सब एग्जैक्टली प्रिसाइसली सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं एंड ट्रुथ को परसीव कर सकते हैं, विच मीन स्टूडेंट्स, हिस्ट्री इज नो मोर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, हिस्ट्री आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। टीपू सुल्तान का कोरोनेशन जाके देख के, और ड्रेस क्या पहना था, उनकी मूंछें कैसी थी, तलवार के ऊपर डिजाइन क्या था, एग्जैक्टली स्टडी करके आओ। सिंस वो आपका पर्सनल लिविंग एक्सपीरियंस हो गया है, पास्ट का हिस्ट्री, सो कॉल्ड हिस्ट्री आपके लिए ट्रुथ है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाउ विल यू एवर फॉरगेट इट? अब भूल कैसे सकते हो पर्सनल एक्सपीरियंस को? वो तो एक्सपीरियंस है ना, वो भी स्पेशल एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार से हिस्ट्री आपके लिए थ्योरी नहीं रह गया, वो आपका लिविंग एक्सपीरियंस बन गया। और कोई हिस्ट्री जिसके बारे में आपको डिटेल्स नहीं पता है, जनरली थोड़ा बहुत पता है, जाके स्टडी करके आओ एंड देन गो टू द लाइब्रेरी, और कोई एडवांस्ड हिस्ट्री का बुक है जिसमें ज्यादा डिटेल्स है, स्टडी करके देख लो, वेरीफाई कर लो जो आपने देखा था यहाँ पे लिखा है कि नहीं। लाइक दैट प्रोज एंड पोएट्री, थ्योरी नहीं रह जाएगा। पोएट जब पोएट्री को का रचना कर रहा है 1783 में बैठ के, 1783 में बैठ के पोएट्री का रचना कर रहा है, चले जाओ उसके पास, मेंटली उसके पास बैठ के अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ और फिर पूछो, अच्छा आपका मन में जो इंस्पिरेशन है जिसके बेसिस पे आप ये पोएट्री लिख रहे हो, जरा समझाइए ना। सो पोएट से आप पोएट्री सीख रहे हो जब वो पोएट्री की रचना कर रहा है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पर्सपेक्टिव से, सिंस इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, हाउ विल यू फॉरगेट इट? इतना इजी हो जाता है। प्रोज, पोएट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, फिलहाल तो थ्योरी है, व्हाई कीप इट थ्योरी? चले जाओ कॉन्गो में,
वहां का फ्लोरा फौना स्टडी कर लो, देख लो ये मिट्टी में पानी मिलाने से तो कीचड़ जैसा बन जाता है या ग्रेनुलर बनता है, उसका सुगंध कैसा है, सब एक्सपीरियंस कर लो ना। ज्योग्राफी को पर्सनली एक्सपीरियंस कर लीजिए, हिस्ट्री को पर्सनली एक्सपीरियंस कर लीजिए, सोशल स्टडीज को पर्सनली एक्सपीरियंस कर लीजिए, इकोनॉमिक्स को पर्सनली एक्सपीरियंस कर लीजिए, मैथमेटिक्स को पर्सनली एक्सपीरियंस कर लीजिए, म्यूजिक, जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं वो क्या कहते हैं, बैक वगैरह जो है वो लोग क्या कहते हैं, आई सी म्यूजिक, उनको म्यूजिक दिखता है। तो आप भी देखिए ना, कौन मना कर रहा है। और सब चीजों के लिए सबकॉन्शियस में उतरना जरूरी है, वो भी स्पेसिफिक तरीके से, मतलब ऐसे मनगढ़ंत तरीके से नहीं, अच्छे से उतरिए, फिर वहां से कैसे बाहर निकलना है, हाउ डू यू लॉन्च योरसेल्फ फ्रॉम देयर, यानी कि लॉन्चिंग के समय चोट लग गई तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग तरीके से निकलना है, सो दैट यू कैन डू दैट व्हाट यू वांट टू डू। तो ये सब सबकॉन्शियस का है। मेडिटेशन के अंदर एवरीथिंग इज डन थ्रू मेडिटेशन।